Hello students, কি খবৰ? আমি মেট্ৰিক্স চেপ্টাৰ 2 লাষ্টৰ এটা টপিক কৰিব বাকি আছিল, সো সেই টপিকটো আজি আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম, যেটো আছিল ইনভাৰ্স অফ 3x3 মেট্ৰিক্স বাই এলিমেণ্টাৰী অপাৰেশ্যন. ওকে, ইনভাৰ্স of a 3x3 matrix. 2x2 matrix to আমি কৰাইছো, আজি 3x3 matrix by elementary operation. By elementary operation. Okay. So elementary operation দ্বাৰা আমি 3x3 matrix কেনে পাব পাৰো? সো হেতুৰ কাৰণে কিছুমান স্টেপ তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব. এটা ধৰা আমি matrix লৈছো A11, A12, A13, A21, A23, A22, A23, A31, A32, A33. So which is a 3x3 matrix? Okay. So I matrix at ki koru by elementary operation. What we do? We said A is equal to IA koru. Then we do a matrix first यानी कि लिख ही लो. Then हम क्या करेंगे इस A को we will convert this A to I. Okay, and this I will be converted to another matrix B. Then B will be your inverse of A. Okay, by doing elementary operation. Etu direct nahe etu bostu, so etu ar power karone ami kisuman elementary operation koribo lagibo. Row elementary operation ya fir Coulomb elementary operation. Okay, so remember one thing, when you do row elementary operation you cannot use the Coulomb transformation, and when you are doing the Coulomb transformation you cannot use the row transformation. So मीन्स एटा मैट्रिक्स जितना हम जब भी एक मैट्रिक्स लेंगे तो उस मैट्रिक्स में सिर्फ अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हो तो पूरा का पूरा स्टेप में रो वाला ट्रांसफॉर्मेशन ही तुमको यूज़ करना है. अगर तुम पहले स्टेप में कुलम यूज़ कर रहे हो तो इन द अदर स्टेप्स यू हैव टू यूज़ द कुलम एलिमेंटरी ऑपरेशंस. So by row transformation, okay, আমি এইটো কি বনাম এনেকুৱা টাইপ বনাম. লেফট হ্যান্ড সাইডটো আমাৰ হৈ যাব লাগিব 0 1 1. ওকে, তো প্ৰথম আহিব কোনকিটা এলিমেন্ট আমি ফাৰ্স্ট চেঞ্জ কৰিম. ওকে, তো ফাৰ্স্টত চেঞ্জ হ'ব ফাৰ্স্ট A11 চেঞ্জ, সেকেন্ড ফার্স্ট A2 ফার্স্টত চেঞ্জ হ'ব, সেকেন্ড A2 সেকেন্ডত A212 হ'ব আৰু থাৰ্ডত A312 হ'ব. এইটো থাৰ্ডত চেঞ্জ কৰিম. দেন ইন ফোর্থ we will change this one A22. okay, and fifth step we will change A12, and in sixth step we will change A32. okay, then in seventh step we will change this one. So this will be your 5, this will be your 6, 7, you have to change this, and this is 8 and this is 9. okay, 7th we will change A33, then 8 we will change A13, and 9th we will change A23. okay, so by row transformation we will change like this. okay, एटू प्रोसेस आइबो ना A इज इक्वल टू I है, याते हम इस A को इसमें कन्वर्ट करेंगे. तो कन्वर्ट करने के लिए एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स को पहले ये वाला सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 ऐसे करके हम लोग चेंज करेंगे. ठीक है, तो एक एग्जांपल की तरह हम देते हैं. नाउ वी विल ट्राई मैथ्स. Question: find inverse of A which is 0 1 2
1 2 3 and 3 1 1. We have to change this, we have to find the inverse of this matrix. So to find the inverse, we have to first write A is equal to IA. Okay, A equal to IA. So put down the values of A, which is 0 1 2 0 1 2 1 2 3 3 1 1. Okay, and here it is 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A. Okay, now we have to change. So जितना जब जो पहले में हमने स्टेप बताया, we will follow those steps. First we will change this, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth. We will use this. So look in here, to use the first step हम क्या कर सकते हैं, हम अगर रो 2 को रो 1 में ले जाए तो ये वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा. सो लेट्स डू दिस. ओके, R1 to R2. So it will be 1 2 3 0 1 2 3 1 1. Okay, so similar steps we have to use on the right hand also. So it will be 0 1 0 1 0 0 0 0 1 A. ओके, सो हम लोग का पहला स्टेप बन गया और ये एलिमेंट 0 हो गया. हमको A को क्या बनाना है, ये वाला एलिमेंट बनाना है, इस आइडेंटिटी एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड में आना है. ठीक है, तो ये 0 बन गया, तो इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो इस 3 को हमको 0 बनाना है. तो इस 3 को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 माइनस 3 इंटू 1 3 करेंगे तो आ जाएगा. तो फॉर डैट वी विल यूज R3 टेंस टू R3 माइनस 3 इंटू R1. ओके, तो फॉर डैट क्या बन जाएगा, 1 2 3 R1 और R2 सेम ही रहेगा. ओके, तो 3 इंटू ये कितना होगा, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 1 इट इज़ 0. 1 इसके लिए क्या होगा, 1 माइनस 3 इंटू 2 विच इज़ माइनस 5. सो ये वाला माइनस 5 होगा. और इसके लिए 1 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 3 विच इज़ माइनस 8. ओके, तो स्टेप्स इधर कुछ गड़बड़ी मत करना जब भी करो, क्योंकि माइनस प्लस भी गड़बड़ी हो गया तो पूरा का पूरा मैथ्स खत्म. ठीक है, तो स्टेप्स अच्छे से साइड में खींच के लाइन खींच के करना है तुम लोग को. हम मुँह पे ही करेगा, टीचर है हम इसलिए. ठीक है, तो अभी इधर 0 1 0 1 0 0, देन 0 and minus 0 minus 3 into 0 it will be 0. 0 minus 3 into 1 minus 3. 1 minus 3 into 0 it is 1. ये बन गया. ठीक है, तो अभी हम अदर स्टेप्स यूज करेंगे. तो इसका तो अब ये बन गया, ए 2 एलिमेंट बन गया. 4th ये वाला बनाना था, तो ये तो पहले से ही 1 है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो इसके लिए हम ये वाला और ये 2 एलिमेंट चेंज करेंगे. तो फॉर डैट हम एक ही स्टेप में करेंगे. ये एलिमेंट कहाँ है, रो 1 में है और ये वाला एलिमेंट रो 3 में है. तो हम रो 1 पे क्या करेंगे, रो 1 माइनस 2 इंटू R1. ओके, और रो 3 को R3 टेंस टू R3 प्लस 5 इंटू R2. ओके, ये R2 होगा. ओके, तो करो कितना आता है देखो. तुम्हारा हो जाएगा ये 0 0 तो हो ही रहेगा. ठीक है, ये 2 चेंज नहीं होगा क्योंकि हम ऐसे इसके लिए हम स्टेप्स वाइज जाते हैं. हाँ, ताकि ये 0 0 चेंज ना हो. तो 1 है ही, तो R1 का R1 माइनस 2 R1, तो ये वाला 0 हो गया. ठीक है, देन क्या है, ये वाला क्या होगा, 3 माइनस R1 माइनस R2 क्या होगा. ये तो ठीक ही था. तो अभी इस एलिमेंट में क्या होगा, R1 माइनस 2 R2 में कितना था 2. R1 में 3 माइनस 2 इंटू 2 which is 3 minus 4 which is minus 1. So this element will be your minus 1. Okay, then
ये वाला एलिमेंट सेम ही होगा, 2 ही होगा। देन 5 के लिए ये 0 होगा। देन -8 के लिए क्या होगा, -8 प्लस 5 इंटू 2 विच इज़ 2, मतलब R2 का एलिमेंट, सो इट विल बी 2। सो ये वाला 2 हो गया। ओके ठीक है, तो सेम स्टेप हम इधर भी यूज़ करेंगे। सो इट विल बी 0 minus 2 into 1, it will be -2, 1 minus 2 into 0 1, 0 minus 0 it will be 0, R2 सेम ही रहेगा 1 0 0, ये बन जाएगा 0 प्लस 5 इंटू 1 5, -3 0 -3 रहेगा, 1 minus 0 1 ही रहेगा। ओके समझ में आया। देन अभी हमको कौन सा एलिमेंट चेंज करना है, ये वाला एलिमेंट। ओके तो ये वाला एलिमेंट चेंज करने के लिए पहले देखते हैं हम माइनस करके भी सेम करना। ये दो अगर रो प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 minus 1, ये 1 हो जाएगा। पर इधर भी देखो, तो अगर वो वाला स्टेप यूज़ करेंगे तो 0 + 1 कितना हो जाएगा, ये वाला एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वी डोंट वांट टू चेंज दिस। जो हमने किया उसको हमको चेंज नहीं करना कभी भी, ठीक है। तो फॉर डैट हम क्या करेंगे, R3 को 1/2 से इंटू कर देंगे। 1/2 से 2 इंटू 1/2 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 -1 2, ये 1 बन जाएगा, -2 1 0 1 0 0, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा 1/2 a। ओके नाउ हो गया। अभी हम लोग का काम है ये दो स्टेप, ये दो चेंज करना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, R1 टेंस टू R1 प्लस R3, -1 + 1 0 हो जाएगा इसलिए। और R2 को क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 -2 R3। ओके 2 इंटू -1 0 हो जाएगा। तो हम लोग को इधर मिल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सिमिलर स्टेप इधर यूज़ करो। ओके R1 प्लस R3 है, तो -2 + 5/2 कितना है, -2 + 5/2 करोगे तो तुमको 1/2 मिलेगा। तो ये 1/2 हो गया, ठीक है। देन 1 - 3/2 करोगे तो तुमको मिलेगा -1/2, 0 + 1/2 तुमको 1/2 मिलेगा। देन ये वाला करना है 1 माइनस, ये वाला स्टेप यूज होगा, R2 में 1 आएगा, 2 इंटू R3 में 5/2, 1 - 2 इंटू 5/2, 2 कैंसिल, इट इज -4। So that's why it will be -4, 0 minus 2 into -3/2, 2 कैंसिल, माइनस माइनस ये 3 हो जाएगा। ओके एंड 0 - 2 इंटू R/3 इट विल बी -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5/2 -3/2 और 1/2 a। ओके सो देयरफॉर हमको क्या मिला, ये वाला मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिला। सो दिस मैट्रिक्स विल बी योर इनवर्स ऑफ ए। देयरफॉर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 ए। हाँ सॉरी, नो नीड ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया सबको? डाउट है तो पूछना हमको। ओके और एक कर दूंगा मैं। Now you have to see next question. For the next question I will write the question for you. If A is equal to 2 1 1 1 0 1 0 2 -1
find A inverse और এটা বস্তু দিছে ইয়াতে and if x is equal to xyz solve x is equal to 101 ओके तो क्वेश्चनটোৰ লগত এইটো বস্তু দিছে ইনভার্সটো ওলাবই লাগিব আৰু তাৰ লগত আমি কি কৰিব লাগিব এই যেটো এটা ইকুৱেচন দিছে এটো সলভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো ফৰ দ্যাট আমি স্টার্ট কৰো আমাৰ মেথডৰে so a is equal to ia 2 1 1 1 0 1 0 2 minus 1 और इधर होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ए ओके तो इसके लिए देखो पहले अभी हमको एलिमेंट सेंस करना है सेंस करने के लिए पहले আমি কি কৰিব পাৰো এটুক আমি 1 বনাব পাৰো এটু 1 বনাবৰ কাৰণে বহুত মেথড আছে প্ৰথম তুমি হাফেৰে ইনটু কৰিব পাৰা বাট যেটা হাফেৰে ইনটু কৰিবা গুটে কিটা হাফ হাফ হৈ যাব তোমাৰ এডিশন মাল্টিপ্লিকেশনৰ প্ৰবলেম হ'ব সো যিমান পৰা প্লাস মাইনাস কৰিলে যদি रो প্লাস रोৰ পৰা रो মাইনাস কৰি যদি উলাব পাৰো 1 2 এটা হলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় हमारे लिए आसानी होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 minus 1 करेंगे रो 1 टेंस टू रो 1 माइनस रो 2 व्हिच इज कितना होगा 2 minus 1 ये 1 बन गया 1 minus 0 1 1 minus 1 ये 0 हो गया तो ये हो गया 1 0 1 0 2 minus 1 is equal to 1 minus 0 is 1 1 0 minus 1 minus 1 0 minus 0 0 0 1 0 0 0 1 ठीक है सो अभी देखो एक चीज़ इधर ये वाला जो डायगोनल एलिमेंट है ये तो 0 हो गया तो 0 को तो हम कुछ भी प्लस इंटू करके 1 नहीं बना सकते तो हम क्या करेंगे रो 1 में देखो 2 2 1 है ठीक है तो इसको अगर इधर ले आया तो डायगोनल बीच वाला डायगोनल एलिमेंट हमको 1 मिल जाएगा तो वो करेंगे अभी R1 R2 R transpose so it will be 1 0 1 1 1 0 0 2 minus 1 ओके देन ये वाला हो जाएगा 0 1 0 1 minus 1 0 0 0 1 हाँ अभी हम बोर्ड को पूछना होगा क्वेश्चंस लिखना है तुम लोग को नेक्स्ट तुमको क्या करना है ये वाला एलिमेंट सेम करना है ये वाला एलिमेंट सेंस करना है पहले ये देन ये 1 को 0 बनाना है तो क्या करो R2 टेंस टू R2 माइनस R1 करो 1 minus 1 0 हो जाएगा तो हमको मिलेगा 1 0 1 1 minus 1 ये कितना होगा 1 minus 1 ये हो जाएगा तुम्हारा 0 1 minus 0 1 0 minus 1 minus 1 अभी R3 तो 0 ही है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये -1 ओके एक क्वेश्चन का भी पोस्ट देता हूँ तुम आई होप यू हैव रिटन द क्वेश्चन देन ये हो जाएगा 0 1 0 1 minus 0 1 minus 1 minus 1 -2 0 minus 0 0 और ये हो गया 0 0 1 ठीक है तो नेक्स्ट हमको करना है ये तो 0 हो गया पहले से तो ये वाला एलिमेंट 0 बनाना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे R3 टेंस टू R3 minus 2 into R2 so which will be 1 0 1 0 1 -1 ये 0 हो जाएगा ये 0 हो जाएगा और -1 लास्ट वाला एलिमेंट कितना होगा -1 -2 into
-1 विच इज -1 + 2 विच विल बी 1, तो ये 1 बन गया। ओके, तो सेम स्टेप्स इधर भी करना, इधर ए लिखना मत भूलना। 0 1 0 1 -2 0, तो 0 -2 it will be -2, 0 -2 into -2 it will be 4, and 1 -2 into 0 it will be 1। ओके, अब ये दो एलिमेंट से हमका चेंज करना है, तो इसके लिए एक ही स्टेप में हम लोग कर देंगे। सो फॉर दैट R1 टेंस टू R1 minus R3 and R2 टेंस टू R2 plus R3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो हमको लेफ्ट हैंड साइड में मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इधर भी मिलेगा हमको कितना, R1 minus R3, 0 minus 2 ये 2 बन जाएगा, 1 minus 4 -3 मिलेगा, 0 minus 1 मिलेगा, R2 plus R3, so 1 minus 2 -1, -2 plus 4 plus 2 0 plus 1 1, और ये -2 4 1। ठीक है, इंटू ए, तो हमको मिल गया। देयरफॉर ए इन्वर्स कितना मिला हमको, मिला 2 -3 -1 -1 2 1 -2 4 1 इंटू ए। ठीक है, तो बाय दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द इन्वर्स। अभी इस क्वेश्चन में लास्ट में एक और सॉल्व दिया था हमको, है कि नहीं, तो वो वाला भी करना है। सो नाउ हमको दिया था x इज इक्वल टू 1 0 1, तो x कितना होगा 1 0 1 इंटू ए इन्वर्स 1 0 1 इंटू करो 2 -3 -1 -1 2 1 -2 4 1। ठीक है, और x मतलब कितना था, x मतलब x ही रखो अभी। तो ये मैट्रिक्स है 1 इंटू 3 मैट्रिक्स, और ये है 3 इंटू 3 मैट्रिक्स। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितना में आएगा 1 इंटू 3 में आएगा ये वाला, और ये वाला में आएगा। ठीक है, तो इधर है x y z, और मल्टीप्लिकेशन तो हमने पहले कर ही लिया है, तो मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 2 0 इंटू 1 1 इंटू -2 कितना होगा 1 इंटू 2 2, ये 0 हो गया। देन 1 इंटू -3 प्लस 4, सो ये 1 बन गया, एंड 1 इंटू -1 एंड प्लस 1, तो ये भी 0। ओके, देयरफॉर x कितना है 0 है, y कितना है 1 है, और z कितना है 0 है। देयरफॉर x मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 0। ठीक है, तो इस तरह तुम लोग को करना है। ये था रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो कूलम का भी हम प्रोसेस बताएगा कैसे तुम लोग कूलम ट्रांसफॉर्मेशन करके भी निकाल सकते हो। ऐसा स्टेप बाकी कोई नहीं तुम लोग को देगा। ओके, तुम बाकी जो जो होगा टीचर्स तुम लोग को सिर्फ कि डायरेक्ट तुमको करके देगा, लेकिन ये जो स्टेप्स है मैंने जो बताया वो स्टेप्स बहुत ही मेन है इन्वर्स निकालने के लिए। और एग्जाम में एक क्वेश्चन तो जरूर आता है, जो भी एग्जाम हो, एंट्रेंस हो, कुछ हो, बोर्ड हो, इन्वर्स निकालना आता ही आता है। ठीक है, और एक चीज नोट, इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है, तब ए इन्वर्स क्या होगा डी ए माइनस बी माइनस सी। हाँ, तो ये वाला क्यों याद रखना है, ये फॉर तुम्हारा एंट्रेंस के लिए, फॉर JEE एंट्रेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो
2 × 2 का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो हम डायरेक्ट प्रूफ कर सकते हैं। लाइक एग्जांपल ए दिया हुआ है 2157, ओके। तो बाय दिस प्रोसेस हम क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स विल बी, ये डायगोनल एलिमेंट इंटरचेंज होता है 7 2, और इन दोनों एलिमेंट के साइन चेंज हो जाता है -1 -5, ओके। तो तुम डायरेक्ट निकल सकते हो। एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये हेल्प होता है, तो हम इसलिए बता दिया। लेकिन बोर्ड्स में प्रोसेस में करके तुमको आंसर निकालना है। मैट्रिक्स का लास्ट क्लास में हमने बताया था ये, ठीक है। और अभी तुमको बताता है कूलम में कैसे कूलम ट्रांसफॉर्मेशन आया तो कैसे करना है। A12 A13 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, okay. So in Coulomb ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कोई एग्जाम में कूलम ट्रांसफॉर्मेशन ना दे तो रो ट्रांसफॉर्मेशन ही हमेशा करना, क्योंकि रो ट्रांसफॉर्मेशन इजी होता है। अगर क्वेश्चन में दे दिया कि डू इट बाय कूलम ट्रांसफॉर्मेशन, तब तो तुमको कूलम में ही करना है, ठीक है। तो फर्स्ट हमेशा आएगा तुम्हारा A11 एलिमेंट फर्स्ट चेंज होगा, एलिमेंट्स टू बी चेंज। फर्स्ट क्या सेंस करेगा, A11, सेकेंड का सेंस करेगा। हम रो में ऐसे सेंस करता था, ये वाला देन ये वाला देन ये वाला, और कूलम में हम ऐसे सेंस करेगा, ठीक है, वो याद रखना। तो सेकेंड कौन सा वाला आएगा, A12 आएगा, और थर्ड में आएगा A13, फोर्थ में आएगा तुम्हारा A22, फिफ्थ में आएगा A21, और सिक्स्थ में आएगा A23, सेवेंथ में आएगा तुम्हारा A33, एट्थ में आएगा A31, और नाइन्थ में आएगा A32। मतलब आएगा, मतलब A11 को 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको भी 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 1 बनाना है, इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, ठीक है। बनाना बहुत बनाना होता है। तो इसी तरह हम कर सकते हैं। हमने 2 एग्जाम्पल दिया, 2 × 2 मैट्रिक्स का इजी मेथड भी कर दिया, और कूलम का ये वाला भी दे दिया। तो तुम लोग प्रैक्टिस करो, हम कुछ क्वेश्चन देगा इसके बाद तुम लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, बाय बाय।